بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ میں داخل ہو رہا ہوں جی پام سٹی، رائل پام سٹی گجرانوالا، ایک نجی سوسائٹی ہے۔ بہت خوبصورت، بہت اعلیٰ درجے کی یہ سوسائٹی بنائی گئی ہے۔ میں آپ کو اس کی خوبصورتی دکھانے کے لیے تو لایا ہی ہوں، ساتھ ساتھ میرا مقصد یہ ہے کہ یہ دکھایا جائے کہ وہ ساری سہولیات جو مقامی حکومتوں کو، صوبائی حکومتوں کو، وفاقی حکومتوں کو اپنے ہر شہری کو بلا تمیز کہ وہ کسی گاؤں میں رہ رہا ہے، محلے میں رہ رہا ہے، چھوٹے شہر میں رہ رہا ہے، بڑے شہر میں، کسی دور افتادہ جگہ پہ رہ رہا ہے یا کیپٹل کے نزدیک رہ رہا ہے، وہ تمام سہولیات جو ادھر میسر ہیں یہاں کے شہریوں کو، یہ صرف انہی کا حق نہیں، ان لوگوں نے پیسہ خرچ کیا ہے تو پرائیویٹ نجی ہاؤسنگ سوسائٹیوں کے جو مالکان ہیں انہوں نے ان کو ہر وہ سہولت فراہم کر دی ہے جو انٹرنیشنل لیول پہ لوگوں کو میسر ہے۔ یقین کریں یہ وہ ساری چیزیں ہیں، ادھر وہ تمام سہولیات موجود ہیں جو انٹرنیشنل لیول پہ کسی جگہ پر بھی میسر ہو سکتی۔ اسی طرح ہر شہری کا حق ہے کہ اس کو سرکار یہ تمام سہولیات اس کے محلے میں، اس کے گاؤں میں، السلام علیکم، اس کے محلے میں، اس کے گاؤں میں، اس کے شہر میں فراہم کرے، کیونکہ ہر شہری بغیر کسی امتیاز کے ٹیکس دے رہا ہے، ماچس کی ڈبیا سے لے کر گاڑی خریدنے تک، ضروریات زندگی کی ہر چیز پر ہم ٹیکس دے رہے ہیں۔ ہمارا حق ہے کہ ہمارے محلوں میں، گاؤں میں، شہروں میں وہ تمام سہولیات ہمیں فراہم کی جائیں جو یہاں کے لوگوں کو فراہم کی گئی ہیں۔ تو آپ یہ دیکھیں، سڑکوں کی مارکنگ دیکھیں، آپ کو یہ مارکنگ جی ٹی روڈ پہ، موٹر وے کے علاوہ کسی جگہ پہ بھی نہیں ملے گی، جی ٹی روڈ پہ بھی نہیں ملے گی۔ جو لوکل سڑکیں ہیں ان کی تو آپ بات ہی نہ کریں، وہاں تو مل ہی نہیں سکتی۔ یہ دیکھیں 3 لین کا یہ روڈ ہے، اس کے ساتھ یہ بائیں طرف سروس لین چل رہی ہے، بالکل اسی طرح دوسری طرف میرے دائیں طرف بھی 3 لائن والا روڈ ہے، 7 سروس روڈ ہے، 7 فٹ پاتھ ہے۔ یہ دیکھیں سڑکوں کے درمیان 3 ڈیوائیڈر ہیں، تینوں پہ آپ کو درخت لگے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ ابھی چھوٹے چھوٹے ہیں، 6 سال کے اندر یہ بڑے بڑے ہو جائیں گے۔ یہاں کے رہائشیوں کو یہ ٹھنڈک بھی فراہم کریں گے، سایہ بھی فراہم کریں گے، سمر بھی فراہم کریں گے، ماحول کو آلودگی سے، جسے ہم انگلش میں پولوشن کہتے ہیں، وہ بھی بچائیں گے۔ کتنے فوائد ہیں یہ سارے کام، یعنی کہ بہترین روڈ جن پہ یہ روڈ مارکنگ ہوئی ہو۔ یہ دیکھیں یہ انہوں نے یہ سپیڈ کم کرنے کے لیے یہ روڈ بریکر بنایا، ایسا روڈ بریکر ہے کہ گاڑی کو کسی قسم کی کوئی تکلیف نہیں ہو رہی، نہ گاڑی میں بیٹھنے والوں کو ہو رہی ہے۔ یہ راؤنڈ اباؤٹ ہے، میں آپ کو اس کا راؤنڈ اباؤٹ کا ایک چکر لگا کے دکھاتا ہوں۔ یہ دیکھیں کتنا خوبصورت راؤنڈ اباؤٹ ہے۔ ایسے راؤنڈ اباؤٹ اگر ہر چوک چوراہے میں چھوٹے بڑے بن جائیں تو اللہ کے فضل و کرم سے گاڑیاں آپس میں کبھی بھی نہیں ٹکرائیں گی، لوگوں کی گاڑیوں کا، جان و مال کا کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ اب یہ ادھر آپ دیکھ لیں، اس طرف کیونکہ ایک پارک بنا ہوا ہے، اس کی پارکنگ ہے، ادھر فٹ پاتھ ختم ہو گیا ہے، وہ میری دائیں طرف، کیونکہ ادھر پلاٹس ہیں، ادھر فٹ پاتھ موجود ہے۔ سڑکوں کے ساتھ پارک اور سڑکوں کے اوپر روڈ مارکنگ اور پارکوں کے ساتھ سٹریٹ لائٹس یا روڈ لائٹس اور پھر درخت۔ یقین کریں جس جگہ بھی آپ یہ چیزیں لوگوں کو فراہم کر دیں گے، ادھر لوگ صحت مند، خوبصورت بھی ہوں گے اور ساتھ ساتھ حادثات سے بھی بچیں گے۔ تو مین حادثات کی وجہ یہ ہے کہ روڈز پر یہ نشانات نہیں دیے گئے۔ یہ 3 لین کی روڈ ہے، تینوں لائنوں میں دیکھیں آپ کو سفید مارکنگ نظر آ رہی ہے۔ سڑکوں کے کناروں پہ دائیں اور بائیں دونوں طرف آپ کو یلو کلر کی مارکنگ
लंबी लाइन नज़र आ रही है, इसका मतलब ये है कि यह सड़क इधर ख़त्म हो गई, आप इधर येलो लाइन को टच नहीं कर सकते। 7 डिवाइडर हैं, दरख्त लगे हुए हैं, वो देखें 7 फुटपाथ शुरू हो गए हैं। पैदल चलने वाले फुटपाथ का इस्तेमाल करते हैं, साइकिल वाले भी तकरीबन फुटपाथ का इस्तेमाल करते हैं, रोड पे नहीं आते, तो किसी किस्म का हैज़र्ड पैदा नहीं होता, हादसा नहीं होता। तो भाईजान मेरा ये दिखाने का मकसद ये था कि यकीन करें, मैंने अराउंड दी वर्ल्ड जिधर जिधर भी मैं गया हूँ, मैंने ये देखा है कि जिस मुल्क में रोड यानी ट्रैफिक का निज़ाम जितना बेहतर है, वो मुल्क उतना ही खुशहाल है। मुल्कों की खुशहाली में सड़कें बड़ा अहम किरदार अदा करती हैं। तो हमें मुतालबा करना चाहिए अपनी मुकामी गवर्नमेंट से, अपने इदारों से और अपनी सूबाई वफाकी हुकूमतों और इदारों से कि वो हमें हमारे मोहल्लों में, हमारे गांव देहात में हमें ये तमाम नेमतें, ये तमाम सहूलियात फराहम करें जो यहाँ एक निजी हाउसिंग सोसाइटी के अंदर मालकान ने अपने लोगों को मुहैया की हैं। ये सर्विस चार्जेस लेते हैं, ये सब कुछ मेंटेन करने के, यकीन करें एक मकान है ना 10 मरले का, उसको तकरीबन 2,500-3 हज़ार रुपया पर मंथ ये सर्विस चार्जेस लेते हैं। लेकिन देखें इंटरनेशनल लेवल की सहूलियात, आपको कहीं गंदगी, कहीं कीचड़, कहीं सड़क टूटी हुई, कहीं फुटपाथ टूटा हुआ, कोई सड़क बग़ैर दरख्तों के, बग़ैर पौधों के, बग़ैर खुशनुमा बेल बूटों के नज़र नहीं आ रही। 2,500-3 हज़ार। इसके अलावा भाईजान ये माचिस से लेकर गाड़ी तक किसी किस्म का कोई टैक्स नहीं लेते। हम गवर्नमेंट्स को, अपनी सरकार को, अपने इदारों को टैक्सेस देते हैं। एक माचिस से लेकर और गाड़ी तक और बैरून मुल्क सफ़र करने तक, खाने पीने की हर चीज़, रोज़मर्रा के इस्तेमाल की हर चीज़ पे टैक्स देते हैं। लेकिन हमें एक सहूलत भी है जो आपको सब कुछ मैं दिखा रहा हूँ, किसी किस्म की कोई सहूलत आपको नज़र नहीं आएगी। निजी हाउसिंग सोसाइटी है, इन्होंने अपना पेट्रोल पंप इधर कायम किया हुआ है अपने लोगों की सहूलियात के लिए। देखें ये इन्होंने बाकायदा पेट्रोल पंप अपना कायम कर लिया। सिर्फ 2,500-3 हज़ार रुपया पर मंथ ये सर्विस चार्जेस लेके ये सारी सहूलियात अपने रहायशियों को फराहम कर रहे हैं। गवर्नमेंट हमसे इनडायरेक्टली लाखों रुपए एक गरीब आदमी से लाखों रुपए टैक्स ले रही है। लाखों रुपए एक गरीब आदमी से, जैसे ये कहते हैं कि जी लोग टैक्स नहीं देते। इनडायरेक्टली अगर टैक्सेस आप लगा लें, माचिस से लेकर खाने पीने की हर चीज़ और इस्तेमाल की हर चीज़, तो आप हर बंदा लाखों रुपए, और जो अमीर आदमी है वो करोड़ों रुपए टैक्स दे रहे हैं हुकूमत को। लेकिन किसी मोहल्ले में, गाँव में, शहर में आपको ये सहूलियात नज़र नहीं आएंगी। बात यह है कि ये करना चाहते थे प्राइवेट मालकान और इन्होंने कर लिया। इनके इंजीनियर्स से, अपने इंजीनियर से ये काम लेना जानते थे, इन्होंने ले लिया। कितने नाअहल लोग हैं इदारों में बैठे हो सरबराह जो अपने इंजीनियर से ये काम नहीं ले, वो करना ही नहीं चाहते। सहूलियात लेना चाहते हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ लेना चाहते हैं, पेट्रोल फ्री लेना चाहते हैं, टेलीफोन, घर, बिजली, गैस, हर चीज़, पानी, हर चीज़ फ्री लेना चाहते हैं अपनी अपनी आल औलाद के लिए। लेकिन आवाम के लिए तिनका भी एक होता है ना, तिनका, वो भी इधर से उधर नहीं करना चाहता। ये मेन मार्केट है इधर की, मैं आपको सिर्फ ये मेन मार्केट दिखा के अब वीडियो का खात्मा करूँगा। ये देखें सहूलियात देखें। और भाईजान अपने अपने लोगों को खाली वोट ना दे दिया करें और खाली सियासतदानों पे तनकीद ना किया करें। इदारों को अपने गज़ब गज़ब का निशाना बनाएं, उन पर तनकीद करें, तमीरी तनकीद, और उनको कहें कि भाईजान हमें ये सहूलियात चाहिए, हमें सड़कों पे ऐसी मार्किंग चाहिए, हमारी सड़कों पे ऐसी मार्किंग करो ताकि हम ट्रैफिक के हादसा से बचें। और हर सड़क 1 वे होनी चाहिए, और हर सड़क पे मार्किंग होनी चाहिए। सड़कों के साथ फुटपाथ होना चाहिए, फुटपाथ पे पौधे लगे होने चाहिए, दरख्त लगे होने चाहिए, और स्ट्रीट लाइट्स, रोड लाइट्स का इंतज़ाम होना चाहिए, और सिग्नल्स होने चाहिए। ये देखें, मेरा दिखाने का मकसद आपको ये नहीं है कि आप मेरे चैनल पे ये वीडियोस देख के बस वाह वाह करें। नहीं भाईजान, ऐसा ना करें। अपने शऊर को बुलंद करें, बढ़ाएं, बेदार करें, उसी अकल का मुजाहरा करें। लोग जैसे यूरोप के लोग अपने हुकूक
अपने हुकूक की हिफाजत के लिए लोगों को वोट देते हैं या इदारों की हमायत करते हैं, आप भी ऐसा ही करें। यकीन करें ये सब कुछ आपको मिल सकता है। अगर ये सिर्फ एक पर मंथ 2,500-3 हज़ार सर्विस चार्जेस लेके ये सारी सहूलियात अपने यहाँ के रहायशियों को फराहम कर सकते हैं, तो गवर्नमेंट क्यों नहीं कर सकती? गवर्नमेंट के पास तो वसाइल ही लामहदूद हैं। आप GOR1 लाहौर में जाके GOR 1, 2, 3 में जाके देखें कैसी कैसी सहूलियत, क्योंकि उधर आला अफसर रहते हैं। इस्लामाबाद में जाकर देखें, क्योंकि वज़ीर मशीर आला लोग अमीरों ने रहना है। लाहौर के पोश इलाके डिफेंस आगे पीछे जाकर देखें। ये सहूलियात हर शहरी का हक है, चाहे वो मोहल्ले में रहता है, गांव में रहता है, शहर में रहता है। ये इंटरनेशनल लेवल की सहूलियात हैं। ये सफाई देखें, सुथराई देखें, आपको एक तिनका भी सड़कों पर नज़र नहीं आ रहा। तो 2,500-3 हज़ार रुपया सर्विस चार्जेस लेके ये सब कुछ ये फराहम कर रहे हैं। गवर्नमेंट क्यों नहीं कर सकती? इदारे क्यों नहीं कर सकते? इसलिए नहीं करते, वो पंजाबी में कहते हैं जिहो जे खान वाले हो जे कौन वाले, यानी कि जैसा गोश्त खाने वाले हैं वैसा ही गोश्त बनाने वाले, जानवर ज़िबा करने वाले, ठीक है ना। तो ये पंजाबी कहते हैं जैसा मुंह वैसी चपेट। जैसे लोग होंगे, जितने फहम व फरासत के लोग मालक होंगे, इदारे उनको वैसी ही सहूलियात देंगे। और फिर वो उर्दू में कहते हैं ये मुंह और मसूर की दाल, कि जैसा मुंह होगा ना भाई वैसा उसके साथ सलूक किया जाएगा। तो मेरे भाईजान, ये इदारों का सबसे ज़्यादा कसूर है, उससे कम कसूर हुकूमतों का है, और सबसे ज़्यादा कसूर हमारा अपना है। हमारा शऊरी अकली लेवल बहुत कम है। हम भाईजान सहूलतें मांगते ही नहीं। तो आपकी बड़ी मेहरबानी है, मेरी ये वीडियो देखकर मेरे पैगाम को समझने की कोशिश करें और अपने हकूक़ के लिए आवाज़ बुलंद करें। ये मुझे इधर अब काम है, तो मैं ये देखें कैसी प्रॉपर पार्किंग है। जिस तरह पार्किंग होती है ना यूरोप में, बिल्कुल उसी लेवल की इन्होंने पार्किंग बनाई है। अपनी बे में गाड़ी लगाओ और पार्किंग करो बेहतरीन। तो मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो से हम ना सिर्फ एंजॉय करेंगे बल्कि शऊर की कोई ना कोई बात भी सीखेंगे। अल्लाह हाफिज़। तो मैं ये अर्ज़ कर रहा था कि ये है गुजरांवाला की एक निजी हाउसिंग सोसाइटी, रॉयल पाम सिटी। इंटरनेशनल लेवल की, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की सहूलियात मौजूद हैं। 2,500-3 हज़ार, 3,500 हज़ार रुपया पर मंथ ये सर्विसेज चार्ज करते हैं। उन सर्विसेज की मद में ये बेहतरीन सड़कें देते हैं, गलियां देते हैं, फुटपाथ देते हैं, दरख्त देते हैं, पार्क देते हैं, सफाई सुथराई, बेल बूटे, हाँ जी। और देखें स्ट्रीट लाइट्स देखें। तो ये सारी चीज़ें सरकार हमें क्यों नहीं फराहम करती हमारे मोहल्लों में, हमारे देहात में, हमारे शहरों में? इसलिए कि हमें इनकी तलब ही नहीं, हम किसी से मुतालबा ही नहीं करते।
हमें ये शऊर ही नहीं है, हमें ये पता ही नहीं कि कौन सा इदारा हमें कौन सी सहूलियात फराहम करने का ज़िम्मेदार है। हमने सिर्फ़ और सिर्फ सियासतदानों को, हुकूमतों को बुरा कहना यही बस सीखा है, यही हमें सिखाया गया है। इदारों का हमें कोई शऊर नहीं कि सिविक इंस्टीट्यूशन यानी कि शहरी सहूलियात फराहम करने के ज़िम्मेदार जो इदारे हैं वो कौन से हैं, उन्होंने हमें कैसे सहूलियात फराहम करनी है। और वो इतनी लाखों करोड़ों की जो सैलरीज ले रहे हैं ना पर मंथ, हर शहर में अरबों रुपए की सैलरीज ले रहे हैं, हमारे टैक्स से जा रही हैं, और वो उसके बदले में ज़िम्मेदार हैं कि हमें ये सारी सहूलियात फराहम करें। नहीं करते, हमने कभी डिमांड भी नहीं की। तो ये है जी रॉयल पाम सिटी। इस सोसाइटी की खूबसूरती ना देखें और खूबसूरती देखकर बस दिल अपना खुश ना करें, बल्कि मेरा पैगाम जो दर्दमंदाना पैगाम है उस पर गौर फरमाएं। इसकी सहूलियात जो यहाँ पे फराहम की जा रही हैं वो सारी सहूलियात मेरे मोहल्ले में, मेरे हर गांव में, मेरे हर शहर में फ़राहम करना इदारों की बुनियादी ज़िम्मेदारी है। क्यों कि वो आपके और मेरे टैक्स पे चल रहे हैं। देखें, रोड मार्किंग देखें, या मैं दूसरी लेन में आ गया हूँ, 3 लेन यानी कि 3 रोया ये सड़क है मोटरवे तर्ज की, बेहतरीन फुटपाथ बने हुए हैं, दरख्त लगे हुए हैं, और देखें कैसी सजावट की हुई है इन्होंने, बाड़ें लगाई हुई हैं। स्पीड लिमिट तक इन्होंने लिख दिया 40 किलोमीटर पर आवर। हालांकि ये लिखने की इधर ज़रूरत है, लेकिन लिखा कीप क्लीन योर एरिया, इंस्ट्रक्शन भी दे दिए हैं। ये देखें आगे वो रोड ब्रेकर आ रहा है, स्लो डाउन ब्रेकर का निशान दे दिया है। ये निशानी है एक सिविलाइज सोसाइटी में। यूरोप के अलावा ये तमाम सहूलियात आपको निजी सोसाइटीज़ में मिलेंगी, या जहाँ पे मिनिस्टर्स रहते हैं या जजेस रहते हैं या बड़े ऑफिसर्स रहते हैं, वहाँ ये सारी सहूलियात आपको मिलेंगी। 99% गरीब आवाम को कुछ नहीं मिलता। उम्मीद है कि आप मेरी रिक्वेस्ट को सुनेंगे और शऊर बुलंद करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।